Namaste, Jai Hind, and welcome to this very, very special broadcast. It's Ram Mandir for India. I'm Anand Narasimhan, and ladies and gentlemen, even as all of Bharat is waiting for a grand Pran Pratishtha of Ram Lalla at Ram Lalla Virajman, the Bhavya Ram Mandir that's going to be consecrated on the 22nd of January, one has to look back and understand that there has been a lot of pain, a lot of suffering, a lot of struggle, legally and otherwise, not just in the decades after independence, but for centuries, even when Bharat was under colonial control. There has been this struggle to get Ram Lalla his rightful place, his Janmbhoomi. In this conversation now, we have some very, very interesting people who've had different roles to play and somewhere or the other have been connected with this Ram Mandir movement. They have felt it evolve and they have been a part of it. Kishore Kunalji is with me, who is part of the entire mediation committee. So if somebody can talk about the struggle, well, he's the right person because he tried to bridge the Hindu Paksh and the Babri Masjid committee or the Muslim Paksh. Gajendra Chauhanji, an actor par excellence who's essayed some phenomenal roles. He's also the Vice Chancellor of the only deemed university of visual arts, performing and visual arts, that offers you a degree in cinema. And it's based in Rohtak in Haryana. So Gajendra Chauhanji, aapka naya avatar, a new avatar. Good to see you here. Thank you very, very much. Karthik Chopra represents the Nirmohi Akhada, a lawyer by profession, and he and his team and Nirmohi Akhada have been perhaps one of the prime people who have laid down a lot of lives over centuries in this fight, which has been since the 1700s, if not more. And we also have with us a Kathavachak, and he is the Shastri Hari Tiwari ji. Namaste. Abhar aapka. Thank you very, very much. But Kishore Kunalji, let me start with you first. It's a moment for celebration for everyone, but it has been a period of great struggle that we are seeing it come to fruition. How would you look back at those times, and did you ever think that you would be sitting here thinking about when am I going to do a darshan of Ram Lalla in the temple that has been built for him, and such a grand one at that? I have been associated with Ayodhya since 1990. I was OSD on Ayodhya during the days of three prime ministers, Mr. VP Singh, Mr. Chandrasekhar and Mr. Narasimha Rao. All negotiations between the two parties were conducted under my supervision. So I know many ins and outs of the whole journey of negotiation as well as solution which came in 2019. And initially the stress was on the evidence. So what I did that I collected evidences and I wrote two books, Ayodhya Revisited, with a foreword from former Chief Justice of India, Justice G.B. Patnaik, and another book that I wrote as a historian. And I replied to the all baseless allegations made by so-called progressive historians. The second book I wrote for the Supreme Court. The name of the second book is Ayodhya Beyond Adduced Evidence. And the foreword was written by former Chief Justice of India, Justice M.N. Venkatachalaiah Sahab. And both wrote the foreword on the merit of the book. That helped a lot in deciding the case in favor of Ram Lalla ji. And I have been fortunate enough that earlier I was associated with Mahavir Mandir Patna, Hanuman Temple at Patna. I got it reconstructed. Then I had the fortune of being associated with Amawa Mandir, which I renovated. And I had visualized that Ram Lalla ji will win. So I left everything. I was an IPS officer. I took voluntary retirement for Indian Police Service. Then I was made Vice Chancellor of Sanskrit University. Thereafter I was Chairman of Bihar Hindu Religious Trust Board for 10 years. I left everyone, every post, came to Ayodhya since in 2016. I made this hall, renovated the temple, and installed Ram Lalla ji just idol on 8th November with the sankalp that Ram Lalla ji must win comfortably so that this temple is built. And next day judgment came. And that day we announced that Mahavir Mandir Patna will give 10 crore rupees towards the construction of the Ram temple. 8 crores we have deposited. Every year we have to deposit 2 crores.
Remaining 2 crores we are depositing on 15th January 2024 before the Pran Pratishtha. Secondly, within a fortnight of the judgment, we started Ram Rasoi in Amava Ram Mandir. The entire cost is borne by Mahavir Mandir Patna. Every day 4,000, 5,000 people come and they take free meal, and we give such a delicious meal that people should remember that when he went to Ayodhya, he visited Ram Janmabhoomi temple, he visited Hanuman Gari, and he had Ram Rasoi run by Mahavir Mandir Patna in a Mahava Mandir. So he will like this bear of Sabri. Ram always remembered that. So the pilgrim who comes to Ayodhya should remember our Ram Rasoi for all the time in his life. So we are doing that with success. But, so much Astha and so much Shraddha, Kishorji, if I may ask you, why? And if the force of the Astha is so strong, so powerful, didn't those, not know this before 1990? Did it have to come to a position where, a structure had to be demolished? But did it have to have so much of, angst about it? There were so many people who say so many things about it. But from you, as a core Asthai, as somebody who's been through the thick and thin of it, at some point did it frustrate you that for me as an Asthai and for those who also know where my Astha is, why my Astha is, why this entire fight on the streets, in the courts, everywhere, and deny something that is so strong? I can feel it from you. How much of, Ram means to you and Ram Lala means to you. So I'm asking you this. No, I have been a student of Sanskrit and history, so I know the importance of Ram in the country and the whole world, particularly in Southeast Asia. Valmiki has written Ramo Vigravan Dharma. Ram is the embodiment of Dharma. And in fact, whatever ideals a nation can think of, Ram represents all those ideals. If you want to find an ideal son, no one can substitute better than Ram as a son. If you want to find an ideal brother, Ramayana gives that reply. Likewise, ideal friend, ideal even king, ideal husband, as well as ideal foe. Very few people know that it is written in Valmiki Ramayana that in first encounter, Ram had almost defeated Ravan. He had made him immobile, but asked him to come next day prepared. So he has been an ideal foe also, enemy. So this is whatever Indian culture is there, the greatest impact is that of Ram. And when I was associated with 3 prime ministers, there were moments when we were under depression that nothing will happen. But there were moments also when we thought that solution is coming, like last days of Mr. Chandrasekhar ji, that he had taken a decision, but unfortunately because of some espionage from Haryana police, Congress withdrew the support and the ministry went. So I have come here at OSD dozens of times, and I had made plan if temple comes, how it should be built. And during the days of Narsingha Rao ji, it was my suggestion that this 70 acres of land was acquired. That time, temple was to be built on the site where Ram Lala ji was Birajman, and in some corner, mosque was to be built. This was the idea of Mr. Narsingha Rao ji. So there were ups and downs when we thought that people stalwarts like Paramanji, Ashok Singhal ji, they could not see this day. So we were also apprehensive whether we will be in a position to see this day or not. But we are fortunate enough to have this day of great joy on 22nd January when Ram Lala ji returns to his home. Earlier he was in exile for 14 years. This time he has been away from his home for centuries. Fantastic. Gajendra Chauhan ji, let me ask you. The world remembers you, knows you as Yudhishthir, but you are so much more than that, and you've essayed so many more characters. Abhi aap mujhe bata rahe the, and you just told me that you are also essaying roles of
Janak and also Parshuram that you're going to be playing. So what does Ram mean to you? And when you were essaying these characters, did you ever realize that the struggle to even assert or to establish the place where he was born is going to be so big, so vast? Big success comes after big struggle, big challenges. बड़े दुख की बात है कि आज रामायण के ऊपर महाभारत हो रही है। राम जो है वो हैं जो इस देश की आन बान शान पहचान, हमारी पहचान है राम। इसलिए पूरा देश जो है राम में हुआ है 22 जनवरी के लिए, कि जिस दिन रामलला जो है अपने ओरिजिनल स्थान पे आके उनका उस मंदिर में स्थापना होगी। मुझे मौका मिला था बी आर चोपड़ा साहब ने जब रामायण बनाई थी उसमें दशरथ का रोल करने के लिए, और मैंने राम को और जाना, जैसा किशोर जी ने बताया कि आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श, लेकिन एक जो बहुत बड़ा सबक मुझे लगता है रामायण से मिलता है वो ये है कि निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाती है उसका फल क्या मिलता है। प्रभु श्री राम जो हनुमान जी को देकर गए वो किसी को नहीं दिया उन्होंने। हाँ। क्योंकि हनुमान जी ने जो सेवा भाव किया वो निस्वार्थ भाव से किया, उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं थी। तो ये जो बेसिकली मैं हमेशा कहता हूं रामायण और महाभारत जो है सिर्फ देखने की चीजें नहीं है, ये सीखने की चीजें हैं। इस देश के अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को ये सिखाना है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति कैसी थी और कैसी होनी चाहिए। मैंने तो कई बार ये भी सजेस्ट किया है कि रामायण महाभारत जो है स्कूल के पाठ्यक्रमों में होनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है ये सब जान सके। और कई स्कूलों ने इसको माना भी है और इस वक्त चल भी रहा है। वो राम को 4 शब्दों में डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राम वो है जिसको हम सामने नहीं देखते हैं। वी ऑलवेज लुक एट हिम लार्जर देन लाइफ इमेज। और जैसा किशोर जी ने बताया कि कितना स्ट्रगल उनको करना पड़ा, किशोर जी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैं उनका आज नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। और बहुत सारे लोग हमारे इस समय नहीं है जब प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, पर मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं परलोक से जो है उनकी निगाहें यहाँ होंगी और उनकी आत्मा 22 जनवरी को यहीं पे होगी और वो इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस सरकार का भी, मौजूदा सरकार का भी, जिसने इस विषय को इस तरीके से उठाया कि आज पूरे भारत को 22 जनवरी का इंतजार है। और 22 जनवरी मुझे लगता है एक आने वाले समय में ऐसी तारीख होगी जो एक उत्सव के रूप में इस देश में देखी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि राम को 4 शब्दों में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ ये कह देना कि आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श जितने भी हैं, पर उन आदर्शों को डिफाइन करना मुझे लगता है कि एक बहुत लंबी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें लिखेंगे तब भी शायद वो पूर्ण नहीं होगा। Have you ever been able to understand this? कभी आप ये समझ पाए कि ऐसा क्या किया कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम तो हम सब उस नाम से जानते हैं, पर एक सामान्य जीव, एक राजा की तरह, राजा के घर पैदा हुए एक प्रिंस थे जिन्होंने कई सारे काम किए, लेकिन हमारे इतिहास में ऐसे कर्मठ और ऐसा काम करने वाले और कैसे जैसे कहते हैं कि प्रोलिफरस पीपल बहुत सारे होंगे। Why is it that Ram is Ram and yes. why is he still here nearly 7,000 years later? Give or take, you know. महाभारत में युधिष्ठिर जो है वो राम के ही बराबर एक पात्र है। और उसमें युधिष्ठिर का और प्रभु श्री राम का जो राज्याभिषेक हुआ है सेम नक्षत्रों में हुआ है। तो उन दोनों कैरेक्टर्स में बहुत सिमिलरिटी है। एक को मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ। राम अपने आप में वो पात्र है जो परिपूर्ण है, सारी कलाओं में परिपूर्ण है। और मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है कि पुरुषों में उत्तम
और हर मर्यादा का उन्होंने पालन किया। वो अपने पिता को मना भी कर सकते थे। जैसे महाभारत में एक प्रश्न है कि युधिष्ठिर ने जुआ खेलने से मना क्यों नहीं किया? हाँ। क्योंकि वहां भी मर्यादा का विषय था। क्योंकि अपने पिता का कहना मानना या ना मानना तो आपके हाथ में होता है, लेकिन पिता के बड़े भाई का कहना मना करना ये मर्यादा के खिलाफ है। तो ऐसा ही इससे भी बढ़ के मुझे लगता है उस राजा ने जो अपना कर्तव्य निभाया, प्रभु श्री राम ने अपना कर्तव्य निभाया कि पिता की आज्ञा का पालन किया और सब कुछ राजपाट छोड़ के और जंगलों में जाके रहे। तो ये अपने आप में एक मर्यादा का जो है हमें पाठ पढ़ाता है, सिखाता है कि पिता की आज्ञा जो है शिरोधार्य होनी चाहिए हमेशा और उसका पालन करना ही चाहिए। कभी इन योर स्ट्रगल्स, किशोर जी, बिफोर आई ब्रिंग इन कार्तिक चोपड़ा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल, कभी आपको ऐसा लगा कि ये अब नहीं होता लग रहा है? आजाद भारत के अंदर, आजाद हिंदुस्तान में राम लला की जन्मभूमि पर उनको विराजमान करना मेरी जीवन काल में ये सार्थक नहीं होता दिख रहा। कभी ऐसा एक मोमेंट आया आपके जीवन? When I joined in June 1990, Home Ministry at OSD Ayodhya, that time the picture was very gloomy because Marxist historians, they had a dominant role, and they had made false propaganda that there is no evidence that there existed a temple at the site where existed a mosque subsequently. So my first task was to see that evidences are there to prove that there existed a temple at the site. And then I wrote that Ayodhya revisited and established that there existed a temple, and it was confirmed by the former Chief Justice of India that the author succeeded in proving that there existed a temple. But during the last days of Chandrasekhar ji, it appeared that the problem would be solved. So that was a day of optimism. And in fact, very few people know, or many people know, that Narsingha Rao ji, in last phase after the demolition of the disputed shrine, he had the idea of constructing a temple. So he created Ramalaya Trust, and that time I was also associated with. I was DIG that time in the CSF, but I was on deputation to the PMO. So since all dharmacharya were known to me from both sides, Hindu and Muslim, so my services were taken. And that time it appeared, but because of the inner conflict of the saints who were to be associated with the Ramalaya Trust, that did not come true. So initially, when the movement started, it was a very gloomy picture, but subsequently there was a hope of ray of hope that we will succeed. But prolonged fight in the court, that was giving despair to the country. Fought in Allahabad High Court also, in Supreme Court also, and the apex court gave such a beautiful decision that all problems were solved, and there was a facilitation for this construction of the temple. So वो राम जी की इच्छा, उन्होंने अपनी माया, अपनी लीला से ये मंदिर बनवा दिया। उससे बहुत से लोग निमित्त बने, सबके प्रति असीम श्रद्धा। और एक और मैं बतला दूं, इसका समाप्त, इस पर मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं, रामो विग्रहवान धर्म, कि जो राम के जितने गुण हैं, रामो विग्रहवान धर्म, रम्या रामायणी कथा, कि राम जी की जो कथा वाल्मीकि रामायण पर है, वो किताबें मैं उद्घाटन के पहले ही, प्राण प्रतिष्ठा के पहले रिलीज करना चाहता था, लेकिन सोचा कि अभी उसमें उसकी आवाज नहीं आ पाएगी, इसलिए अगले महीने फरवरी में इसको करूंगा, रामो विग्रहवान धर्म। आप जो पूछ रहे हैं कि राम का महत्व क्यों है, उसका सबका जवाब उसमें दिया। तो वो किताब तो पढ़ेंगे और उस वक्त आपसे फिर से चर्चा करेंगे, दैट वो मैं वादा भी आपसे ले रहा हूँ। बट he said something very interesting, and with your comment, and then I'll go to Karthik, and then I'll bring in Hari Tiwari ji also there, that there was an attempt to distort or even dispel the notion that there exists a temple or there could be a Ram Janmabhoomi, the possibility. Why would somebody want to do something like that in Hindustan?
Why would somebody say, go ahead and do this? Tell Hindus that there is no Janmabhoomi. I will tell you. Because Thoda mic pass. some eminent Muslim scholars, including Sayyid Sahabuddin Sahab, had told that if it is proved that there existed a temple at the site of the mosque, then he will take a spade and he will demolish the mosque. So this was commitment of some eminent Muslim leaders. So Marxist historians, they tried to prove that there did not exist a temple, and two of the Marxist historians, they were my teachers, Professor R.S. Sharma and Professor T.N. Jha. I learned the lessons of history from them. But when I found that they are exceeding all limits of misleading the people, then I became a rebel and wrote these two books, and criticized and established that there existed a temple at the site. Then, now Gajendra ji, the fact is that one Mr. Shahabuddin had said that if there is a temple there, then I will take a spade and I will break down the mosque. What is the job of these Marxist historians to try and prove that there is no temple there? Because Marxists are supposed to be atheists. उनको क्यों फर्क पड़ा कि एक को हवा दे दूसरे को दबा दे? सत्य कभी पराजित नहीं होता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस देश में मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, और किसी भी देश को बर्बाद करने का यही रास्ता होता है कि उसकी सभ्यता और संस्कृति को खत्म कर दिया जाए। अंग्रेजों ने फाइनेंशियली इस कंट्री को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सनातन धर्म की जड़ें इतनी मजबूत हैं, ना मुगल हिला सके ना अंग्रेज हिला सके, और आजकल जो नकारात्मक ताकतें लगी हुई हैं वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि सनातन का अर्थ ही यही है कि अनादि से अनंत तक ये हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। कुछ लोगों की कोशिशें रहती हैं कि किसी तरह इसको नुकसान पहुंचाया जाए, और ये सब इसको एक राजनीति का रूप देते हैं बेसिकली। तो वो राजनीति जो है 2014 के बाद बदल गई है इस देश में, और अब जो है विकास की राजनीति इस देश में चल रही है, और मुझे लगता है हम थोड़ा सा देर से आए। ये जो सोच है विकास की, थोड़ी देर से आए। अगर ये आज से समझो 40 साल पहले और होती तो इस देश की रूप ही कुछ और होता। हाँ, रूपरेखा कुछ और होती। नो, मैं बस आई एम आस्किंग यू, हैव यू एवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन? एंड आई नो यू हैड अ फ्यू run-ins with some of these historians, distorians, and this lot. But I just wanted to understand from you that why would somebody in Azad Hindustan, you know, a nation that was partitioned on the grounds of religion, want to disprove the very core of Hindustan? Very simple. रावण हमेशा से था, शकुनी हमेशा से था, दुर्योधन ये उसी का रूप है। सब ये राक्षस कुल के बच्चे हैं जो इस तरह की सोच लगा के बैठे हुए हैं कि भाई हिंदुस्तान की जड़ों को खत्म कर दिया जाए। मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूं, वो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सनातन की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और नकारात्मक और सकारात्मक सोच वाले हमेशा हर युग में रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी वो बहुत बुरी तरह मार खाने वाले। अब निर्मोही अखाड़ा कार्तिक में यही से I'd like you to take it forward, because today there are those who are also trying to say that the Sikhs have no connection with Hindus, and Hinduism or Sanatan Pratha has got nothing to do with Sikhi, but it was Guru Gobind Rai. Yeah, please. Guru Gobind Rai formed the Khalsa Panth, and therefore it's very, very clear that there is no question of there being no roots of Sikhism in Hinduism, in our Sanatan faith. When you were talking about distorting of history, it's this very Marxist-Leninist distortion of history that found its way into Parliament when they formed the Places of Worship Act 1991, which denies Sanatanis from places of our ancient worship, namely Mathura and Kashi. And my appeal to the Muslim community is that, look, Nirmohi Akhada fought in the courts from the 1860s, and before that, from 1528 onwards, Mahan Samanand and his followers were slaughtered. Every generation they were slaughtered. Our gurus like Raghunath Das ji, Bhaskar Das ji, Mahant Raja Ramchandracharya, who today is in his 100th year, our Sarpanch, and has been fighting this case since the beginning. We've gone through long legal struggles, as have other parties. In the case of Ram Mandir, always the other side said there is no proof that there was a temple here before.
The ASI reports came out. It very, very clearly, the evidences were there. I went down into those trenches. We saw those. The photographs are there. Yet those were not accepted for a long time till finally within the Supreme Court it said there was a non-Islamic structure below it. My appeal today on this great occasion of the rising of the Ram temple is that the Muslim community should look ahead now, look at Mathura, look at Kashi and clearly understand that the evidences are all above ground which clearly prove that these places belong to the Hindu faith, the Sanatan Hindu faith. This should be a moment of reconciliation, not for more struggle all over again. And an appeal to the government is please take back this Places of Worship Act. You have the majority in Parliament, you can take it back. The legal part aside, the politics aside, on ground, did members of Nirmohi Akhada sleep at Ram Chabutra, Sita Rasoi? Members of the Nirmohi Akhada were forever at that site. And even in the Supreme Court judgment, it clearly says that the Nirmohi Akhada had a historical role and presence at the site. Now, the court did not get into describing what that role and presence was after having dismissed the Shebiyat without reason. Even though during the hearings they asked us not to argue our Shebiyat further because no one is disproving your Shebiyat right. The other issue that our case was dismissed was on the basis of limit of not being within time. But let's not get into that. But our point is that our Akhada was always at the site. Up till 1982, the Akhada always had control of the outer courtyard of the where the structure stood. So the Nirmohi Akhada had forever been there, protected the site, carried out prayers on the Ram Chabutra, and as far as we were concerned, the structure which the other community called it something else, for us was always a temple. There was never a question of calling it anything else. And this is something for which we fought for centuries. Our objective was that Bhagwan's grand temple should be rebuilt, and for that we are grateful. So let me ask you this: when you're saying centuries of struggle and fight, तो आप कह रहे हैं कि 1860 में भी आपने लीगल केस किया था उस वक्त 66 में किया था 67 में किया था. What I'm trying to understand is, I'm sure उस वक्त भी there must have been a conversation on mediation. If there was a conversation about mediation in the 90s and then in the 2000s and in the 2010s, there must have been a conversation in the 1860s, in the 1870s, in the 1880s, in the 1900s. There must have been an aspect of mediation. Hindus trying to tell the Muslim Paksh, listen, we just want this because this is where our Ramlala was born. But what used to happen at that time was that you take advantage of the Sahab Bahadur or the English rulers that was done by those who did not want resolution for their own personal reasons. And those who were ruling this country wanted to rule, wanted peace to plunder. They wanted a peaceful situation so they could continue their plunder of centuries. They were not looking at peace between the communities for the sake of peace. Whereas the reason that they gave always, even when the holy site here was partitioned, was to maintain peace between the communities. So, Haji, Kishore ji, you were saying something. I would like to supplement one point. Ji. That though the temple was demolished, either in 1528 by Babur, as the tradition is accepted, or in my research, which was accepted by two former Chief Justices of India, in 1660 during the days of Aurangzeb. Till 1858, the Hindus worship in the disputed shrine continued, and there was no namaz. Right from 1528 or 1660 to 1858. Nearly 200 years. Nearly 200 years. Nearly 200 years. And this is one of major factors that convinced the Supreme Court that this has been a temple right from the beginning. So this aspect was not highlighted by the historians that time. During my research, all foreign travelers who visited this disputed shrine, they have written that Hindus worship is continuing. Lal Das ji wrote Awadh Bilas, an epic at Ayodhya, sitting beside this disputed shrine, wrote that Hindus worship is continuing. So Hindu worship continued throughout the ages. After 1858, when the government of India took over the administration,
then they arbitrarily deprived the Hindus of inner worship, Yes. worship in the inner courtyard, And created a wall. And asking Hindus keep us out. to go out on Chabutra and do Kirtan Bhajan. And there was a lot of resentment throughout the country. And Nihang Sardars, they came from Punjab. They captured this disputed shrine and wrote Ram Ram on each wall. So this has been, this namaz started in 1858. Earlier, even after the demolition, no namaz had been offered. No, not big. So you are saying that nearly 200 years the pratha of puja continued. And this struggle, this fight, is not something that is just happening in the courts now, or the fight on the streets that happened, that we witnessed. ये कई सारी सेंचुरी से चली आ रही है. अगर आप कह रहे हैं कि 1600 से चली आ रही है. Never forgot the site. They continued puja and they fought for the. Every time they were tried to remove from there, used to come back, fight and come back. We never let go of the site. So there must have been a reason, ना? कोई तो reason होगा जिसकी वजह से before 1528 also you have the Brahmkund Gurdwara here. This is where Guru Nanak Dev Ji has visited, and he writes in his chaupas about how he used to take a dip in the holy Brahmkund and then walk to the Shri Ram Mandir. So there was never any dispute as to the fact that a Ram Mandir existed here, which is something that was always thrown in our faces by the historians, that there was never a Ram temple here. How would you look at this, Harishankar ji? I'll just come to you after this. मैं आपकी तरफ ही रुक कर रहा हूँ. पर गजेंद्र चौहान जी, आप how would you look at this? क्योंकि हर दशक में व्यक्ति बदलेगा, पर मानसिकता तो नहीं बदली है. नहीं, ऐसा नहीं है कि सबकी मानसिकता नहीं बदल गया. आप देख लीजिए पिछले 400 साल में भारत का स्वरूप बदल गया. जहां पर आज हम हैं वहां पर हम पहले नहीं थे. और इस बीच में ब्रिटिश अंग्रेजों और मुगलों के बीच में 70 साल हिंदावी राज्य था, मराठा का राज्य था. उसके बाद भी ये चला ही आ रहा है कि ये डिनायल जो है. मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको राजनीति का रूप दिया जा रहा था. एक देश को कैप्चर करने की प्लानिंग थी पूरी, एक कल्चर को कैप्चर करने की प्लानिंग थी, और जिसमें वो सक्सेस नहीं हुए. और जैसा कि किशोर ने बताया है कि वहां पे पूजा होना कभी बंद नहीं हुआ. ये बहुत बड़ी बात है कि आप 200 सालों तक वहां पूजा कर रहे हैं और वहां पे दूसरे धर्म वाले कुछ कर ही नहीं रहे हैं. तो बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो प्रूफ दिए हैं, मैंने वो यहाँ देखे भी हैं, रामलला के मंदिर के साइड में रखे हुए हैं. उससे मालूम पड़ता है कि ये हिंदुओं का ही रामलला टेम्पल था और है. और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक है. और 22 जनवरी को वो इतिहास जो है हमेशा हमेशा के लिए ऐसा रचा जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, जाने वाली पीढ़ियां उसके बारे में याद करके उसको सराहेंगी. किशोर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगा, ऐतिहासिक तथ्य है कि सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, उन्होंने मराठा सरदारों को ये वचन दिया था कि हम अयोध्या वापस करेंगे. और वापस तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन वचन आधा निभाया. जो राजधानी उनकी अयोध्या थी, यहाँ से वो फैजाबाद चले गए. फैजाबाद चले जाने के बाद क्या हुआ कि अयोध्या में मंदिरों की भरमार हो गई और हिंदुओं का वर्चस्व हो गया. तो ये मराठा लोग भी नहीं भूले. देश का कोई भी राम भक्त राम जन्मभूमि को कभी भी इतिहास में नहीं भूला है. अभी हरि तिवारी जी, आप शास्त्री जी, आप हमारे साथ हैं, आप कथावाचक हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि रामलला के बारे में, और ये राम जन्मभूमि है, ऐसे भी आप कथाएं कहते हैं कि या रामायण में कहीं बखान है कि राम का जन्म कहां पर हुआ, कौन सी जगह पर हुआ, और यही दशरथ का, राजा दशरथ का ये कहा जाता है, जिस एरिया को कहा जाता है कि ये उनके महल का अंग था और ये वो कक्ष था जहां रामलला पैदा हुए. नहीं, देखिए, रामायण में किसी स्पष्ट जगह का कि सरयू से इतना सेंटीमीटर उत्तर या दक्षिण, ऐसी किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा. लेकिन मानस में भी है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी और उत्तर दिश बहे सरजू पावनी. तो सरयू के दक्षिण में हमारी जन्मभूमि है और ये युगों से चली आ रही. त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग, इतना दिन बीता जैसे हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है. और सबसे पहली बात किशोर जी ने सबसे पहले कही कि रामो विग्रहवान धर्मा.
अगर हम सनातन से राम को निकाल दें तो सनातन बचता ही नहीं, क्योंकि राम ही सनातन है और सनातन ही राम है। राम जी का अवतार हर त्रेता में होता रहता है, ऐसा हम गुरुजनों से सुनते हैं और पुराण शास्त्र वेद भी कहते हैं। एक निश्चित जगह पे जहां महारानी कौशल्या का भवन रहा होगा, वहीं पे भगवान राम का जन्म हुआ। राम से राम की आस्था उसी समय लोगों में जुड़ गई थी जब भगवान राम धरती पर थे, क्योंकि जैसे हमारे आदरणीय गजेंद्र जी ने कहा कि राम को 4 शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि राम को 4 शब्द क्या 4 करोड़ 4 अरब शब्दों में भी राम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे पानी में एक फुटबॉल अगर डुबाओ तो उसका छोटा सा हिस्सा दिखता, तो बाकी का नहीं दिखता। तो बाकी का अगर दिखता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का है नहीं। हम राम को उतना ही जान पाते हैं जितना हम देखते हैं। कोई तुलसीदास के दृष्टि से देखता है, कोई वाल्मीकि के दृष्टि से देखता है, और कोई वेदव्यास के दृष्टि से अध्यात्म रामायण को पढ़ के देखता है। दक्षिण में भी कई रामायण लिखे गए, पश्चिम में, पूरब में भी, लेकिन हमारे अयोध्या में सबसे ज्यादा राम को देखने का जो दृष्टिकोण है वो श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी के जो राम का रूप रचा। जन्मभूमि थी भाई, अगर राम थे तो जन्मभूमि थी, यही सबसे बड़ा प्रमाण। तो तुलसीदास जी कैसे राम को देखते थे? भाई तुलसीदास तो ब्रह्म के रूप में देखते हैं। तो उन्होंने कैसे व्याख्या की, जरा सुनाएंगे? तुलसीदास जी ने राम जी को व्याख्या नहीं की राम जी की। हाँ। राम जी के कहीं कहीं रूप का वर्णन किया, हाँ। कहीं कहीं गुण का वर्णन किया। जरा सुनाइए। अब जैसे अयोध्या का गौरव, अयोध्या की महिमा, आज हम यही राम मंदिर फॉर इंडिया कार्यक्रम में हैं। राम जी और अयोध्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक। बिना अयोध्या के हम भारत की कल्पना नहीं कर सकते और बिना राम के अयोध्या की नहीं कर सकते। क्योंकि जब सप्तपुरियों का वर्णन किया कि भगवान के किन किन अंगों में कौन कौन सी पुरियां प्रतिष्ठित हैं, तो अयोध्यापुरी मस्तके, अयोध्या को बताया कि ये भगवान के मस्तक पर विराजमान है। तो अगर हमारा चेहरा न दिखे तो फिर हमारे रूप को आप पहचान जान नहीं पाओगे। ये अयोध्या की महिमा में शास्त्रों ने कहा। महाराज मनु ने अयोध्यापुरी बसाई थी, जिनके वंशज हम लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं सब मनु के वंशज जी। और अयोध्या का सीधा सा अर्थ यही था कि जिसको युद्ध से जीता ना जा सके। तो रावण के काल में भी अयोध्या अजेय थी, अयोध्या को कोई जीत नहीं सका। जब तक सूर्यवंशी राजाओं का यहाँ पर वर्चस्व था, वो थे, तब तक अयोध्या अजेय रही जी। बीच में जब मुगल आए यहाँ पे, जैसा अभी आप लोग चर्चा कर ही रहे थे कि बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक, आज के औरंगजेबों में भी, आज भी हमारे देश में बहुत औरंगजेब हैं। और औरंगजेब एक विचार है मेरे हिसाब से जी, एक मानसिकता है, एक मानसिकता है औरंगजेब और बाबर की। जैसे राम मंदिर के बदले में उनको मस्जिद की भूमि दे दी गई, हम में से किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि हम तो भाई संविधान से बंधे हुए हैं और विचार भी श्री राम वाला है। जब महाराज भगवान राम को वन भेजते हैं जी, तो अभी आपने प्रश्न भी किया था कि रोक सकते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, या फिर कह सकते थे कि महाराज हमारी गलती क्या है, सभा में हमारे साथ न्याय किया जाए। वही बात आपने युधिष्ठिर का उदाहरण देके समझाई। लेकिन भगवान राम माता कौशल्या से कहते हैं नारायण कहते हैं कि पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, पिताजी ने मुझे जंगल का राज दे दिया है। मैं जा रहा हूं जंगल में और वहां पर अपनी प्रजा के साथ रहूंगा। तो सेना ले जाइए, तो कहा सेना की क्या जरूरत पड़ेगी वहां। कहा नहीं, जैसे वहां पे कोई लोग हैं जो आदिवासी वनवासी, कहीं कोई आपका प्रतिरोध करें, युद्ध ही करना पड़े। बोले नहीं, राम का कोई प्रतिरोध कर ही नहीं सकता।
मुझे जाकर के उनको सिखाना है कि तुम अपने को कैसे मजबूत कर सकते हो, तुम्हारे अंदर की गुण क्या है उसको विकसित करने के लिए राम जाते हैं। और शुरू करते हैं केवट से और समाप्त करते हैं विभीषण पे। विभीषण पे, अच्छा। वहां के बीच में सबको ज्ञान, बल, नीति, न्याय, धर्म, ये सब सिखाते गए। राम जी ने एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श शत्रु, आदर्श भक्त, आदर्श भगवान, आदर्श स्वामी, हर जगह पर भगवान श्री राम ने कहीं भी लेश मात्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के गुण पर क्या कहा है, जरा हमें बताएंगे? राम जी के गुण पर बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक वो भगवान मानकर स्वयं को भक्त मान के कहते हैं कि पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। राम का नाम जपो, स्वयं से कहते हैं। हम आपके लिए लोग आज रामचरितमानस पे कितना कुछ कहते हैं। गोस्वामी जी ने उनको अधिकार नहीं दिया कमेंट करने का, बोले मत पढ़ो, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिख रहा हूं। और अंत में उन्होंने कहा भी कि राम भज सुन सठ मना, मैं अपने को सुना रहा हूं। और अंत में लिखा कि मेरा अंतःकरण शांत हुआ, स्वांतस्तमः शांतये। मेरा अंतः का जो तम था, अंधेरा था, वो शांत हो गया। राम माने रोम रोम को प्रकाशित करने वाला वो ज्ञान। वो ज्ञान। किशोर जी, आपने हाथ उठाया बीच में जब शास्त्री जी कुछ कह रहे थे। जी, मैं इतिहास और संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ जी। और अयोध्या पर जितने भी संसार में ग्रंथ हैं सबका अध्ययन करके ग्रंथ लिखा। राम जन्मभूमि कहाँ है, अनेक शास्त्रों में लिखा हुआ है। लोकेशन अयोध्या महात्म से लेकर के अवध विलास जो लालदास जी ने यहीं पर लिखा था, लिखा हुआ है। समस्या क्या थी और इतिहासकारों ने कैसे भ्रांति फैलाई, उसमें लिखा हुआ था। पहले विघ्नेश्वर से 500 धनुष इधर, लोमस ऋषि के आश्रम से इधर। उन लोगों ने कहा कि ये सब आज पता नहीं चल रहा है, कहीं सरजू तट पर था, इसलिए प्रमाणित नहीं होता है। मैंने उन्हीं ग्रंथों से 2 मानक निकाले जी। वो मानक ऐसे हैं जो 1992 तक थे। सीताकूप से लिखा हुआ है कि ये वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम कोण में राम जन्मभूमि है, और सीता रसोई से ये अग्नि कोण में यानी दक्षिण पूरब कोण में राम जन्मभूमि है। और मैं सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन उपस्थित था जब बहस चल रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा था कि कोई बतला सकता है कि राम जी का जन्म स्थान क्या था। इसके और 6 और साक्ष्यों के आधार पर एक नक्शा बना करके हमने सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विकास सिंह जी के माध्यम से दिया था, जो उनके वकील राजीव धवन जी ने सुप्रीम कोर्ट में इसको फाड़ा था क्योंकि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी नक्शा देख करके। वो विवादित ढांचे के बीच में राम जी का जन्म स्थान था। क्योंकि वही प्रमाण अब तक लोग विघ्नेश्वर मंदिर खोजने में लगे हुए थे, लोमस ऋषि के मंदिर को खोजने में लगे हुए थे। हमने सीताकूप और सीता रसोई सभी ग्रंथों में ही लिखा हुआ है कि ये वायव्य कोण में, सीताकूप से वायव्य कोण में राम जन्मभूमि है और सीता रसोई से दक्षिण में अग्नि कोण में है। वो प्रमाणित हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि उसको यह है। तो प्रमाण रहे हैं और केवल भ्रांतियां फैलाई गई। चूंकि उस समय उन लोगों का वर्चस्व था, इसलिए ये देश में भ्रांति हुई। मैं तो मुस्लिम धर्माचार्यों से अधिक उन इतिहासकारों को दोषी मानता हूं जिन्होंने भ्रांति फैलाई। यदि भ्रांति नहीं हुई होती तो उस समय भी मुस्लिम समुदाय में एक वर्ग ऐसा था जो मान रहा था कि यदि वहां पर सचमुच मंदिर था तो हम लोगों को सौंप देना चाहिए। और मुझे वह दिन भी ख्याल है कि चंद्रशेखर जी के सामने नवाब पटौदी ने आकर कहा था कि यदि वहां पर ये राम जन्मभूमि सौंप देने से समस्या का समाधान हो जाता है तो समाधान कर लेना चाहिए। ये मानसिकता बहुत बड़े समुदाय में उनके बीच भी थी, लेकिन अपनी रोटी सेकने के चक्कर में
उन लोगों ने कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए इतना लंबा खींचा। नहीं तो राम जी के मामले में मैंने भी बहुत कोशिश की थी। मैं तो मंदिर बनाने वाला व्यक्ति था, पटना से मंदिर बनाकर वहां गया था, लेकिन मुझे परमहंस जी के मैं आकर के रहता था, उनके यहाँ सब करता था, बहुत उनका आशीर्वाद मुझे मिला, उनके लिए भविष्य में कुछ कर सका तो मेरे जीवन की सार्थकता होगी। तो कहने का मतलब कि पर्याप्त साक्ष्य थे, लेकिन साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ करके जनता के बीच रखा जा रहा था, जो पिछले 10-20 साल में अब स्थिति लोगों को मालूम हो गई है। राम जन्मभूमि यही थी जहाँ राम लला जी विराजमान थे और जहाँ ये मंदिर बन रहा है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो ये आप कह रहे हैं कि प्रमाण हमेशा था, पर कुछ लोगों ने इसे परोक्ष रखा। जी, इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना कहूंगा कि जो शब्द दुनिया के शब्दकोश में है तो वो है, तभी वो वहां है। हाँ। ये नाम हजारों लाखों युगों से चले आ रहे हैं, तो ये क्यों थे वहां? कुरुक्षेत्र आज भी है, तब भी था। वृंदावन तब भी था, आज भी है। कृष्ण जन्मभूमि, वो कहते हैं ना कि जो राम को लाए हैं वही कृष्ण को लाएंगे, जो अयोध्या बनाए हैं वही मथुरा काशी बनाएंगे, मथुरा बनाएंगे। हाँ। वही मथुरा बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो इंतजार खत्म हुआ है। हम सबको खुशी खुशी जो है अब एक उत्सव के रूप में 22 जनवरी को देखना चाहिए, और सब हिंदुस्तानियों को जो नहीं आ सके वो अपने मंदिरों में, गलियों के मंदिरों में उस दिन जरूर कुछ ना कुछ पूजा पाठ करें। एक अंतिम प्रश्न है इसके बाद आफ्टर कार्तिक। हाँ जी बोलिए। एक ये जो दौर जो गुजरा है आजादी के बाद, जबकि हर हिंदू को शर्मिंदा होना पड़ा अपने ही जो बुजुर्गों के स्थान जो है वापस हासिल करने के लिए, जिस तरह हिस्ट्री को मरोड़ा गया। राइट। Why should I be ashamed to be a practicing Sanatani Hindu in my country? I hope after 22nd January and after this long struggle that we have seen, nobody should feel that we are out there asking for something which we are not entitled to. This is our birthright. These sites are our birthright. Please don't make us feel ashamed to ask for them back. Right. Because they're not yours. Perfect. Fantastic. My final question to all of you. If I were to ask you, who is Ram to you? Who is Ram? To you. आपके लिए राम कौन है? Who is Ram to you? What would you say? In your own way, क्योंकि हर कोई राम के साथ अपने आप को अलग तरीके से जोड़ते हैं, कुछ लोग समान तरीके से। पर I would just ask you, किशोर कुणाल जी, इस देश के सारे आदर्शों, You'll have to hold them. हाँ जी, sorry. इस देश के सारे आदर्शों का पर्याय राम है। क्या बात? यही मेरी दृष्टि में है, और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके ही समाज या देश या दुनिया प्रगति कर सकता है। यही मैं करना चाहता हूँ। क्या बात है, ब्यूटीफुल। हाँ जी। एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा, उससे समझ में आएगा कि जब महाभारत में मेरा सिलेक्शन चल रहा था तो मुझे सबसे पहले कृष्ण का रोल मिला था। हाँ। तो उन दिनों ऑडिशंस चल रहे थे, तो मैं बीच में अपने गांव गया और मैंने सुबह सुबह क्या देखा कि मेरी मदर जो है पूजा कर रही हैं और उसमें अरुण गोविल का और दीपिका का फोटो लगाया हुआ है। तो मैंने पूजा खत्म होने के बाद माँ से पूछा कि ये तो हमारे एक्टर दोस्त हैं, इनकी पूजा क्यों कर रही है? उन्होंने कहा नहीं, ये राम और सीता हैं। तो मैंने उनसे कहा कि कल मुझे अगर कृष्ण का रोल करोगी तो क्या करोगी? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भी पूजा करूंगी। हाँ। ये आस्था है इस देश में। देखिए जी, एक माँ जो है अपने बेटे को उस रूप में देखकर उसकी पूजा करना चाहती है। ये राम जो है हम सब के लिए राम है, इससे और कुछ नहीं, और राम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्या बात है। कार्तिक चोपड़ा? मेरे लिए बहुत छोटा सा कहूंगा, पर कण कण में राम है और हर सांस में राम है। हर सांस जो जीवित रहता है, जो जिससे जीता है, वो राम है। हर वो रोटी का टुकड़ा जिससे अंदर शक्ति मिलती है, वो शक्ति राम है। तो हमारे लिए तो राम सर्व जगह है जी, ऑमनी प्रेजेंट है जी। राम राम रामेति रमे रामे। हर निस्वार्थ भावना जो है, जिस निस्वार्थ भावना, वो राम है।
कोई भी कार्य करने का कोई ना फल चाहिए, वो राम है। जीने का सबसे उत्तम नजरिया राम है। क्या बात, लवली। मेरे दृष्टि में श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति। यह संपूर्ण जगत जिनकी शरण में है, बिना राम के कोई गति नहीं है किसी की। राम ही गति है, राम ही मति है, और राम ही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। राम ब्रह्म है। राम वो तेज है जिस तेज से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। राम वो ज्ञान है जिसका एक छोटा छोटा कण हम सबके मस्तिष्क में पड़ा है, और उसके लिए कोई इतना बड़ा ज्ञानी हो गया कि वेद का विस्तार कर देता है और वेद व्यास हो जाता है। कहते हैं कि भगवान का वेद व्यास में आवेश अवतार आ गया, थोड़ा सा आवेश आ गया। और हनुमान जी ने कहा रावण से कि जाके बल लवलेश ते जितेउ चराचर झाय। जिनका छोटा सा कण बल के रूप में रावण में चला गया और वो त्रैलोक्य विजयी हो गया, वो राम है। कि जिनके द्वारा एक जगत है जो इंद्रियों के और विकारों के अधीन है, और एक राम है जिनके अधीन में इंद्रियां और विकार है। क्या बात है, अमेजिंग। जाते जाते एक बात और कहूंगा जी। 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा होगी। उसके साथ साथ मैं एक चीज और देखना चाहता हूँ जी। कपिल सिब्बल को अपना वादा पूरा करते हुए देखना चाहता हूँ। कपिल सिब्बल जी, कपिल मिश्रा, वो क्या नाम, वो कौन सा कपिल जो शो करता है कॉमेडी का, उससे बड़े कॉमेडियन। वाल्मीकि रामायण की सर माइक, सर माइक। हाँ जी, हाँ, सॉरी। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, यावत स्थासयन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेशु प्रचरिष्यति। इस धरती पर जब तक पहाड़ हैं, इस धरती पर जब तक नदियां हैं, तब तक राम कथा चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके न्यूज 18 चैनल से मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करूंगा कि 22 तारीख को सब लोग, जब यहाँ रामलला की प्रतिष्ठा हो रही होगी, उस समय सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने छतों पर दीपक जलावें और अपने अपने घरों में श्री राम जय राम इसका कीर्तन करें। जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।